اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہم نے شروع کیا تھا حروف الجر۔ حروف کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حروف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ حروف ہیں استفہامیہ جو سوال کرتے ہیں، کچھ حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوابیہ ہیں، جو جواب میں ہمیں مدد کرتے ہیں۔ نعم ہے، یا استفہام میں ہم کہتے ہیں کہ کیا، حل کیا، جواب میں نعم کہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک قسم کے حروف ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حروف شرطیہ یا حروف ندا، لیکن یہاں ہم آج حروف الجر کر رہے ہیں۔ سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کو جر دیتے ہیں۔ جر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، جر اگرچہ عام سمجھ جو مبتدئین ہیں، پہلے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اسم کے لاسٹ میں زیر ہو۔ حالانکہ زیر کو ہی ہم جر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زیر، یہ جر جو ہے، یہ جو کسرہ ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ حالت جری اور طریقوں سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جو بعد میں جو بیچ میں آ جائے گا، جس وقت وہ آ جائے اس کو۔ یہاں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اب اسم سے پہلے ان حروف میں سے کوئی بھی آتا ہے تو اسم کو جر دیتا ہے۔ یاد کرنے کی خاطر، آسانی کی خاطر ایک شعر بنایا ہے کسی بہترین انسان نے، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ با وتا وکیف ولام واو منز مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ تو یہ جو ہیں یہ حروف الجر ہیں، حروف الجار ہے۔ تو یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ اسم کو جر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں اس طرح بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوگا اللہ، اللہ تعالی جو یہ مرفوع ہے، رفع ہے، اسم الجلال ہے۔ یا کوئی بھی جو اسم ہوگا تو وہ دراصل مانا جاتا ہے بغیر عامل کے یہ مرفوع ہے، یہ اس میں رفع دے دی گئی ہے، رافعین۔ اور رفع کا ایک اظہار میں نے آپ کو کہا کہ پیش کی صورت میں ہوتا ہے، یہاں ضمہ کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر ہم اسی اللہ کو اللہ سے پہلے لائیں گے فی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ تعالیٰ پر، اللہ مینز پر، تو اس کو یہاں گیا اللہ، اللہ پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ایک ہے، تو بلکہ ان حروف جارہ میں سے ایک ہے جو بہت ہی ضروری ہیں آپ کو یاد کرنا۔ اعلیٰ یہ قرآن میں بھی آتی ہیں، آپ کی لیسن میں بھی آتی ہیں، اور اکثر یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ ہے، ان ہے، فی ہے، من ہے، اور با، تا، کیف اور لام اور واو، یہ 1 2 3 4 5 اور 1 2 3 4 اور حتی اور الا، یہ استعمال ہونے والے زیادہ ہیں، باقی جو ہے کہ باقی بہت کم ہیں۔ فی کا حروف کا میں آپ نے 11 میں پڑھ لیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں ان کا اپنا معنی تو ہوتا ہے، لیکن اپنا معنی جو ہے یہ اس کا صحیح طور اظہار نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ اس اسما اور افعال کے ساتھ نہ ہوں، یعنی اسموں کے ساتھ اور فعلوں کے ساتھ، ناؤنز اور وربز کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے تب تک یہ اپنا اصلی معنی نہیں دیتا ہے۔ ان کو ہم انگلش میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے فرام سری نگر ٹو جموں، فرام سری نگر ٹو جموں، تو عربی میں کہیں گے من سری نگر یا من سری نگر، غین سے ہم کہیں گے کیونکہ غاف نہیں ہے، سری نگر الی جموں۔ تو من جو ہے، من اور الا جو ہے یہ حروف جر ہیں، من منے سے، الا منے تک۔ اب یہاں کی طرف آ جائیں گے ہم،
تو अलल्लाह अल्लाह पर, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, मिन माने से, मिनल्लाह अल्लाह से। हालांकि अल्लाह क्या था, मरफू, लेकिन जब अला लगा, इला लगा, मिन लगा, तो इसके बाद हमने लास्ट पर देखा इसको जरी हालत में, इसके लास्ट पर जेर लगी, जार लगी। जार का इजहार जो है वो यहाँ जेर की सूरत में आ गया, कसरा की सूरत में आ गया, कसरा है। तो अब आपने क्या याद रखा कि हुरूफी जार कहते हैं 17 हैं। अब इसके मुतलिक तो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी है। उस इख्तिलाफ को छोड़कर हम ये याद रखेंगे कि 17 हैं। बा है, ता है, कैफ है, लाम है, वाव है, मुंज है, मुज है, खला है। रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। इस तरह तो मुश्किल है याद करना। अब क्या है, शायरों ने कहा है, एक शायर ने कहा है, बाव तावो कैफ लामो वाव मुंजो मुजखला। फिर आप भी बताओ, अगर आप घर में बैठे हुए हो, ये सुन रहे हो, तो आपको भी चाहिए कि इनका जो है आप इआदा करें, आप इनको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें और बड़ी आवाज़ के साथ। बाव तावो कैफ लामो वाव मुंजो मुजखला, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। पहला वाला शेर पढ़ो, बाव ताओ काफलामो, पहले इस बाव ताओ काफलामो पढ़ो, बाव ताओ काफलामो, बाव ताओ काफलामो, वाव मुनजो मुज खला, वाव मुनजो मुज खला पढ़ो, वाव मुनजो मुज खला, बाव ताओ काफलामो वाव मुनजो मुज खला, बाव ताओ काफलामो वाव मुनजो मुज खला। जरा आप ही रिपीट कर लीजिए, शाबाश। बाव तावो कैफ लामो वाव मुनजो मुजखला, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला। तो इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे इस सबक में, जो आपने पढ़ भी लिया आधा हिस्सा यहाँ पढ़ना है आपको। तो क्या आ गया, वल्लाहि, क्या लिखा है, वल्लाहि, वल्लाहि अल्लाह की कसम, ला अशरबु अद्दुखान, वल्लाहि अल्लाह की कसम। तो ये वाव जो है ये हर्फ जार है। क्या है, हर्फ जार। ये कसम की खातिर भी आ गया, वल्लाहि अल्लाह की कसम, वल्लाहि अल्लाह की कसम, तल्लाहि अल्लाह की कसम। ता भी जो है वो भी अल्लाह की कसम की खातिर आता है। बा वता, वाव भी हर्फ जार है, ता भी। तो वल्लाहि अल्लाहि ला, लेकिन हमने यहाँ देखा कि अल्लाह आम हालात में अल्लाह, ये जो इस्मुल जलाला है, इसको हम कहते हैं अल्लाह ताला का नामी, अल्लाह ताला का इस्मी गरामी, अल्लाह ताला का जो शान वाला नाम है, अपना नाम है, इसमें ज़ात है वल्लाह, अल्लाह 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 ताला अल्लाहु। जब वाह मिलेगा तो वल्लाहि अल्लाह की कसम। यहाँ याद रखना चाहिए कि मुसलमान को कहा गया है कि आप अल्लाह की कसम के बगैर किसी और का कसम न खाएं। हम कहते हैं जवानी की कसम, हम कहते हैं कि आपकी कसम, मेरी कसम, उम्र की कसम है, बच्चे की कसम, ये कसम खाने जो हैं शिरक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये अल्लाह का कसम भी खाना है, ये भी सच खाना है। अगर कभी इसको तोड़ लिया तो कफ़ारा लाजिम आता है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब आ जाता है। यूं ही नहीं कि किसी ने कहा कि हाँ आप पियो चाय पियो, बस चाय छाछ वगैरह नहाज दाना बने चाहो ना, इसमें कसम के वल्लाह ना चाहो पत पूरे चाहो। तो ये जो है, इससे भी कभी कभी अगर ये सोच समझ कर अगर ये मजाक के तौर पर न हो तो संजीदा इंसान के लिए इस पर क्या हो जाता है, इसको कसम तोड़ने का कफारा वाजिब आता है। अंदाज़ा करो, एक चाय की प्यारी पी ली, लेकिन 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है, अगर सचमुच ये संजीदा इंसान है और सही मोमिन है। तो लिहाजा इन कसम खाने से परहेज़ किया करें। और एक हदीस पाक में भी आता है कि जो ज़्यादा हल्लाफ है, ज़्यादा कस्में खाने वाला है, वो झूठा हुआ करता है। तो ज़्यादा कस्में मत खाया करो। जब मजबूरी होती है, कि भी ऐसा होता है कि मजबूरी होती है, तो वल्लाहि अल्लाह की कसम, ला अशरबु, मैं नहीं पीता हूँ, शरीबा यशरबु,
अशरबु ये मुजारे का सेगा है। शाबाश। हम जानते हैं कि शरीबा से निकला था यशरबु, यशरबु, यशरबु। तो इसका जो है ये 13वां सेगा है, यानी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। शाबाश। यशरबु, यशरबानी, यशरबून, तशरबु, तशरबानी, यशरबन, तशरबु, तशरबानी, तशरबून, तशरबीन, तशरबानी, तशरबना। अशरबु मैं पीता हूँ या पीऊँगा, अशरबु मैं पीता हूँ, नशरबु हम पीते हैं। तो यहाँ कौन सा ये अशरबु मैं पीता हूँ या पीऊँगा। मुजारे के सेगे में दो चीज़ें आती हैं, हाल भी और मुस्तकबिल की। मैं पीता हूँ या मैं पीऊँगा। ला अशरबु मैं नहीं पीता हूँ या नहीं पीऊँगा। अद्दुखाना कहती है धुआं। अल्लाह की कसम मैं धुआं नहीं पीता हूँ, मैं धुआं नहीं पीऊँगा। यहाँ धुआं का मतलब है सिगरेट या तंबाकू नोशी। तो यहाँ कसम खाता है कि मैं और यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि कोई बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ये हराम है, यानी सिगरेट पीना भी हराम है। अगर इसमें इख्तिलाफ है, कई कहते हैं हराम नहीं है, लेकिन हर हाल में मकरूह है। और इस पर जो खर्च करना जो है वो कई कहते हैं इसराफ में आ जाए, कोई कहते हैं तब्जीर में आता है। तो आप जानते हैं, आपने हम शायद इसमें भी पढ़ना है कि पढ़ा है हमने इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। आप अंदाज़ा करो, आपके पास पैसा नहीं, माँ बाप आपको फ़ोन के लिए या फ़ोन रिचार्ज के लिए, पढ़ने के लिए पैसा देता है। अगर आप उसको इस चीज़ में डालोगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये अल्लाह को धोखा है, माँ बाप को धोखा है, खुद अपने आप को धोखा है, जिस्म को धोखा है। ये जिस्म जो आपके पास अमानत है। वल्लाहि ला अशरबु अद्दुखाना। क्या समझा आपने? यहाँ हरफ जार वाव था, अल्लाह से पहले वाव आ गए तो ये अल्लाह ही आ गया। यहाँ हरफ जर, ये यहाँ ज़ेर आ गई, जर आ गई। वल्लाहि अल्लाह की कसम। इति अंत कल असदी हक्कन, या अंत कल असदी हक्का। अंत तू, आप ये ज़मीर है तो कौन सा ज़मीर है? 7वां। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंत, अंत माने तू एक मर्द, का माने जैसे कि। अल असदु था असली, अल असदु था, अल असदु। लेकिन अल असदु जो है, जब इसको आ गया का माने जैसे, जैसे कि लाइक, का अल असदु, अल असदु ये इसके साथ मिला, ये का नहीं है, ये का अल असदु। तो जब इकट्ठे मिलता है, आप जानते हैं कि हमज़तुल वस्ल जो है वो बैद में पढ़ा नहीं जाता है, ये सिर्फ लिखा जाता है। कैफ को लाम के साथ मिलाएगा, कल असदु जैसे कि शेर है। अंत कल असदु आप शेर की तरह हो, आप शेर की तरफ नहीं, शेर की तरह। एक और आम गलती है, तरह कहते हैं जैसे कि, लाइक। तरफ कहते हैं उस साइड। तो यहाँ जो है आमतौर पर मैंने देखा, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी वो तरह को तरफ कहते हैं। इस तरह मैंने ऐसे जान लिया, इस तरफ नहीं है। तरफ जो है वो साइड के वाक़ इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो है तरह है। तो यहाँ क्या है? अंत कल असदी आप शेर की तरह हो, आप शेर जैसे हो। हक्कन सचमुच, हक्कन मिने सचमुच, आप सचमुच शेर जैसे हो, आप शेर की तरह हो, या आप सचमुच शेर के जैसे हो। तो ये का जो है, शाबाश, का जो है हरफ जार है। जब ओ तो था तो असदु, जब कैफ मिल गए, इसके साथ कैफ है हरफ जार, तो यहाँ बन गया कल असदी। क्या बन गया? कल असदी। अंत कल असदी आप शेर की तरह हो, हक्कन सचमुच। रुब्बा, रुब्बा ये जो है इसके मुतजाद मीनिंग आ जाते हैं। कभी कभी आ जाता है ज़ाती की मीनिंग, कभी कहता है बिल्कुल कम। यहाँ कम के मीनिंग में आया है। रुब्बा तालिबिन, रुब्बा तालिबिन कम ही तालिब इल्म, कम ही तालिब इल्म। मवाजिबा अलल हुजूरी, मवाजिबा मवाजिबत करते हैं, रेगुलर रहते हैं। वो जो है वो कंटिन्यूटी अख्तियार करते हैं। अलल हुजूरी, हुजूर कहते हैं अटेंडेंस। उनकी अला माने पर, अल हुजूर था। अल हुजूर जब अला मिला तो अल्लाह की वजह से अल हुजूर को क्या बोला? अलल हुजूर, क्योंकि अला है। हमने हुरूफ जारा में पढ़ लिया अभी। हल जो है क्या, अला जो है क्या है? हुरूफ जारा में से है। अला हुरूफ जारा में से है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शाबाश
अलल हुजूरी, अलल हुजूरी। रुब्बा तालिबिन मवाजिबा अलल हुजूरी, कम ही तालिब इल्म हैं जो अटेंडेंस पर रेगुलर रहते हैं, जो मवाजबत करते हैं अटेंडेंस में, यानी जो हमेशा क्लास में हाजिर रहते हैं। तो मैं तवक्का करूँगा कि आप इन ऑनलाइन क्लास में मवाजबत इख्तियार करो। माँ बाप ने आपको फ़ोन दे दिया है, वो खुद मुसीबतों में मुश्किलात में रहकर वो पैसा कमा के आपको ये देते हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल करें और इसको देखें। तो क्या लिखा है, रुब्बा तालिबिन मवाजिबा अलल हुजूरी, कम ही स्टूडेंट्स, कम ही तालिब इल्म इस अटेंडेंस पर मवाजबत करते हैं, रेगुलर रहते हैं। यहाँ देखो हुजूर था, अलल हुजूर आ गया, हुर्फ जर है, अला मने पर, अला मने पर, इसका मैंने पर है, लेकिन ये तब माने देगा जब इसके साथ बाकी अल्फाज मिले, जो ये अस्मा मिले, अफ़आल मिले, तब जाके। यहाँ एक और बात है, रुब्बा भी माना जाता है, ये जर देता है, लेकिन हुरूफ जर है, तो आप देखिए कि लेकिन ये नकिरा को जार देता है। खैर ये चीज़ आपके इस सिलेबस में नहीं, आप इतना याद रखें कि ये भी जार देता है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा रुब्बा हाशा, पढ़ा ना, रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अला खता इला, वो रुब्बा भी जो है ये भी हुर्फ जार है। रुब्बा तालिबिन, तालिबुन था, मैंने आपको कहा कि हर इसम जो है आम हालात में मरफू हालत में होता है, रफ़ा की हालत में होता है। तो ये इसके बाद कुरान की आयत है। आप जानते हैं कि जब हम नमाज के लिए उठेंगे, वैज़ा कुन्तुम इला सलाती, जब हम नमाज, फगसलू वुजूहकुम, अपने मुंह को दो, व अयदियकुम, और अपने दोनों हाथों को धो लो, इलल मराफिक़ी, कोहनियों तक, कोहनी कहते हैं इसको, ये एल्बो जो है यहाँ तक। खैर इसमें कहते हैं कहीं ये समेत, कहीं कि नहीं ये समेत कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हम ये समेत धोएंगे तो उसमें वो भी आएगा, यहाँ तक भी आएगा, ये पूरा समेत भी आ जाएगा। खैर जिसको जो मज़हब और मसलक कहता है, जो इसको वो उसी तरह करे, लेकिन कहा गया है कि फ़गसिलू, फ माने पास, अगसिलू, इगसिलू, तो गसल करो, फगसिलू, तुम गसल करो, तुम धो लो, गसल कहते हैं धोना को। यह अमर का सेगा है। वुजूहकुम, वजहुन माने चेहरा, वुजूह माने बहुत सारे चेहरे, वुजूहकुम तुम्हारे चेहरे। कुम जो है आपने पढ़ा है 11th में, ये ज़मीर है, लेकिन ज़मीर मुतसिला। वुजूहकुम, आप अपने मुंह को धो लो, मुंह को, चेहरों को धो लो, व अयदियकुम, और अपने दोनों हाथों को धो लो। यदुन माने हाथ, अयदिया माने दो हाथ, कुम अपने दोनों हाथों को धो लो, इला माने तक, अल मराफिक़ी, कोहनियों तक, आप धो लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, व अयदियकुम, और अपने हाथों को। हाथ अरबी में पूरे इस बाजू को यहाँ तक कहते हैं, पोस्ट के बगैर जो ये साइड है, ये आर्म कहते हैं हम, क्या, व अयदियकुम, ओ अयदी यदुन, व अयदियकुम, और अपने हाथों को धो लो, इलल मराफिक़ी, कोहनियों तक, एल्बो तक। अन तज़िरु का मुनज़, तो यहाँ क्या हमने समझे, यहाँ मराफिक़ु था, अल मराफिक़ु क्या था, अल मराफिक़ु, लेकिन क्या हुआ, तो अल मराफिक़ु था, शाबाश, हम ऐसे कहेंगे, था तो अल मराफिक़ु, था तो अल मराफिक़ु, लेकिन क्या बन गया अब, अल मराफिक़ु अब बन गया इलल मराफिक़ी, इला अल मराफिक़ी, कोहनियों तक। फगसलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक़ी, अपने चेहरों को धो लो, और धो लो अपने हाथों को, इलल मराफिक़ी, इन कोहनियों तक। आप सोचें तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा ये हर्फ अतफ का वाव है या एक हो, तो उसको छोड़ो, यहाँ आप यहाँ की तवज्जो दे दो, इलल मराफिक़ी। अन तज़िरु का मुनज़ उसबुइन,
अंतज़िरु मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं इंतज़ार अंतज़िरु का मैं इंतज़ार करता हूँ। यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है, अंतज़िरु ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है लेकिन है मुज़ारे का। यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है, यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है, यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है। यंतज़िरु यंतज़िरानी यंतज़िरून तंतज़िरु तंतज़िरानी यंतज़िरन तंतज़िरु तंतज़िरानी तंतज़िरून तंतज़िरीन तंतज़िरानी तंतज़िरन अंतज़िरु मैं इंतज़ार करता हूँ। मुंज़मन से फ्रॉम या सिंस हम कहेंगे, उसबुइन एक हफ्ता से। जैसे हम वहाँ कहते हैं इंग्लिश में सिंस और फार, उसकी तरफ यहाँ तवज्जो मत दे। तो आप यहाँ को अंतज़िरु का अंतज़िरु मैं इंतज़ार करता हूँ का तेरा, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। ये यहाँ का जो है ये क्या है, ये ज़मीर है, लेकिन कौन ज़मीर है, ज़मीर मनसूबा। ये अंतज़िरु मैं इंतज़ार करता हूँ का तेरा इंतज़ार करता हूँ, मुंज़मन से उसबुइन हफ्ते से। असल में था उसबुउन, उसबु मीन्स हफ्ता है। सबुन से निकला है, सबुन मैंने 7 दिनों का होता है उसबु, उसबु मैंने वीक, WW के वीक हफ्ता। तो अंतज़िरु का मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, मुंज़ उसबुइन एक हफ्ते से मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। तो यहाँ क्या गया, मुंज़ जो है मैंने आपको कहा ये भी हरफ जारा है। बा उताओ का फलामो वाओ मुंज़ आ गया, मुंज़ उसबुइन एक हफ्ते। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ उसबुउन था, अब क्या गया उसबुइन क्यों बन गया, क्योंकि इससे पहले हरफ जारा आ गया। अब लास्ट वाला है हज़रा अत्तल्लाबु सिवा ज़ैदिन, हज़रा हाजिर हुआ, अत्तल्लाबु तालिब इल्म हाजिर हुए। तो ये जो है जब ये पहले फ़ेल वाक़ा हो उसके बाद जो है ये जब ये मुकस्सर हो जाए तो क्या उससे पहले हम हज़रा ला सकते हैं, वाहिद का इसे ला सकते हैं। हज़रा तल्लाबु हाजिर हुए तालिब इल्म, सिवा माने बगैर, कश्मीरी भी हम कहते हैं सिवा, तमिस सिवा आए सारी, सिवा ज़ैद के बगैर, ज़ैद के सिवा तमाम तालिब उन्होंने अटेंड किया। हज़रा तल्लाबु तालिब इल्म ने हाजिर हुए, सिवा ज़ैद के बगैर। तो ज़ैदुन था, ज़ैदुन आम हाल मैंने को कहा ज़ैदुन है, हुआ ज़ैदुन वो ज़ैद है, लेकिन यहाँ ज़ैदिन क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले हरफ जार आ गया, इसने इसको जार दे दिया। तो आज का ये लेसन है वल्लाहि ला अशरबुद्दुखान, कसम अल्लाह की मैं क्या नहीं पीता हूँ, मैं दुआ नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। अंत कल असद हक़न, आप सचमुच शेर जैसे हो। रुब्बा तालिबिन मवाजिब अलल हुजूर, अक्सर बहुत ही कम तालिब इल्म जो हैं वो हाजिर होते हैं, वो अपनी अटेंडेंस पर मवाजबत करते हैं, रेगुलर रहते हैं। अलल हुजूर यहाँ है कल असदी का हरफ जा रहा है, अलल हुजूर या अला हुजूर जा रहा है, वल्लाहि यहाँ वाव हरफ जा रहा है। फगसलू वजूहकुम, अपने मुंह को दो, अपने चेहरों को दो लो, व ऐदियकुम और अपने हाथों को इलल मराफिक़ी कोहनियों तक। अंतज़िरु का मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, मुंज़ उसबुइन एक हफ्ते से मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। हज़रा मने हाजिर हुए, अत्तल्लाबु तालिब इल्म हाजिर हुए, सिवा ज़ैदिन ज़ैद के सिवा। तो सिवा जो है यहाँ हरफ जा रहा है, मुंज़ यहाँ है तो यहाँ हरफ जार लग गया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका नोट बनाओ और वो जो है नोट भेज दो, और आप जो है घर में भी एक वो जो आप बनाती हैं नोटबुक, उस पर भी ये लिखो और पढ़े हैं। तो इसको 1-2 बार रिविज़न करो, तब जाके जो है अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।